إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال الشاعر ترى الرجل النحيف فتستريه وفي أصوابه كن أسد مصير. لا إله ہرنے پاپم إلا الله پرمپدم. اوم بھروسواہا تسویتو وروڑیم بھرگو دیوस्य دھیماہی دھیو یو نہ پرچودین. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور عزت والے مخلوق بنائے. زیادہ کچھ میں نہیں بولوں گا اس لیے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مختصر تقریر کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایک حساس ٹاپک کر آپ کے سامنے بات رکھوں. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے. یہ پینڈل ابھی جو خالی دکھائی دے رہے ہیں اس میں بھی کچھ خصوصیات ہیں. میرے پیارے ساتھیوں بتانے کا مقصد یہ ہے جس کو انسان معمولی اور حقیر سمجھتا ہے اور جس نیکی کو بھی انسان حقیر اور معمولی سمجھتا ہے کہ اس نیکی سے ہمیں ملنے والا کیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہر چھوٹی نیکی ہو پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں. آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. ایک چھوٹی بچی تھی. ایک دن ایک ایسا آدمی تھا جو صبح کے وقت سہانا موسم میں سہانا وقت میں صبح کے وقت باغیچے کی سیر و تفریح کے لیے جایا کرتا تھا. صبح کا وقت ہوا سیر و تفریح کے لیے باغیچہ گئے. جیسے اس باغیچے کے اندر پرویش کیے باغیچہ کے اندر داخل ہوئے اتنے میں نظر ایک پتے کے اوپر پڑی. ایک پتے ہیں اور اس کے اندر شبنم کے قطرے موجود ہیں، شبنم کی بوندیں موجود ہیں. باغیچہ ہے اس باغ میں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اور ان پودوں کے پتے نکلے ہوئے ہیں اور ان پتوں میں شبنم کے قطرے ہیں، شبنم کے بوندیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں وہ آدمی شاعر تھا جس نے اس چیز کو دیکھ کر ایک شعر نکلا. ایک شعر اپنی زبان سے ان کے زبان سے نکل گیا. ایک شعر پڑھا اور یہ شعر ادا کیا. باغ میں پودا
बाग में पौधा, पौधा में पत्ता, पत्ता में कतरा शबनम का, पौधा में पत्ता शबनम का। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने जब उस पत्ते के ऊपर नजर डाला और देखा कि शबनम के कुछ बूंदे उसके अंदर पड़ा हुआ है, कुछ कतरे उसके अंदर है, लेकिन दूसरा शेर याद नहीं आ रहा है, वो उसी जगह पे बैठ जाता है और मातम करना शुरू कर देता है और सोचता है, आय अल्लाह, मैं एक शेर को पुर करने के लिए, इसके जुमले को पुर करने के लिए मुझे एक ही शेर का जुमला मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है। वो आदमी उसी जगह पे बैठ जाता है और सोचना शुरू कर देता है, गौर करना शुरू कर देता है। इतने में एक छोटी सी बच्ची अपने नाश्ते लेकर अपने भाई और अपने बाप को पहुंचाने के नाश्ते लेकर आ रही होती है। सुबह का टाइम 9 बज जाता है और सुबह के टाइम 9 बजे के वक्त वो बच्ची खाना लेकर आ रही है, नाश्ता लेकर आ रही है। देखा कि चचे की उम्र के है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये अपने दिमागों में ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा कर रहे हैं, गोया कि लग रहा है कि ये सोचो उलझन में पड़े हुए हैं, कुछ सोच रहे। अपने चचे को पूछ डाले, अरे मेरे चचा बताओ, आप आखिर इतना परेशान क्यों है, आप इस जगह में इतनी देर से बैठे क्यों है? चचा कहता हूँ, मेरी बेटी, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बड़े बड़े शायर तो हैरान हो गए, बड़े बड़े शायर तो हिम्मत तोड़ दिए, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? कहा, चाचा आप कहिए तो सही, मैं अगर आपकी मदद कर दूं। कहा, नहीं नहीं, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो। बेटी ने कहा, चाचा हमने सुना है कि जो पहाड़ हिमालय है उससे फजीलत कोई तूर को है। हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसको फजीलत उतनी हासिल नहीं जितना फजीलत कोई तूर को है। हमने सुना है कौवे से कौवे का बच्चा चालाक होता है, हमने सुना है कि बकरी से बकरी का बच्चा चालाक होता है। इसलिए चाचा, हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, हम आपसे छोटे हैं, हो सकता है आपसे हमारे अंदर कम हुनर है, लेकिन ये भी हो सकता है चाचा कि मैं आपकी मदद कर दूं, ये भी हो सकता है कि मैं आपके इन मुश्किलात को दूर कर दूं, ये भी हो सकता है कि मैं आपकी इन परेशानियों का हल बन जाऊं। इसलिए चाचा आप मुझे कहिए, मैं इंशाअल्लाह आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। उस चाचा ने जवाब दिया है, मेरी बेटी तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? कहा, नहीं नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगी। फिर चाचा ने कहा, बेटी मेरी मदद करो। लेकिन कुछ लोगों क्या, ये बेटी, ये भतीजी, ये लड़की अपने चाचा से कह रही हो, चाचा आप मुझे क्या इनाम दोगे? मैं अगर आपकी परेशानियों का हल निकाल दो, मैं आपकी अगर इन चीजों में मदद कर दो तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? चाचा कह रहा, वो मेरी बेटी, जितने भी खर्च लगेंगे तुम्हारे शादी में, जितने भी निकाह में खर्च लगेंगे, इन तमाम खर्चों को मैं देने के लिए तैयार हूं। अब कहिए। लड़की ने कहा, चाचा आप अपनी परेशानी बताइए, मैं इंशाअल्लाह आपका हल निकाल दूंगी। चाचा ने कहा, बेटी मैं सुबह सुबह इस बागीचा के अंदर आया, देखा कि छोटे छोटे पौधे हैं और उन पौधों में पत्ते हैं और पत्ते में शबनम के कतरे हैं, शबनम की बूंदे हैं। मैंने एक शेर का मिसरा पढ़ा, मैंने एक शेर का मिसरा लिखा कि बाग में पौधा, पौधा में पत्ता, पत्ता में कतरा शबनम का, पत्ता में कतरा शबनम का। एक मिसरा मैंने लिखा, दूसरा मिसरा नहीं मिल रहा है। ओ मेरी बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बेटी ने कहा, हाँ चाचा मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो बेटी सुबह का वक्त था, नाश्ता लेकर आ रही थी। मेरे प्यारे साथियों, उसके हाथ में एक डाली थी, उस डाली में कुछ रोटियां भी थी और उस रोटियों में कुछ कतले थे शलगम का। उन्होंने दूसरा मिसरा लिखा और कहा, मेरे चाचा मैंने एक दूसरा मिसरा आपके लिए बना रहे हो। वो दूसरा मिसरा ये है, आप पहले शेर पढ़िए। वो चाचा शेर पढ़ता है कि बाग में पौधा, पौधा में पत्ता, पत्ता में कतरा शबनम का। फिर ये लड़की शेर पढ़ती है, हाथ में डलिया, डलिया में रोटी, रोटी में कतला शलगम का, रोटी में कतला शलगम का।
اور میرے پیارے ساتھیوں اب اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ جو انسان ایک لڑکی کو معمولی اور حقیر سمجھتا تھا، جو انسان ایک لڑکی کو یہ سمجھتا تھا یہ لڑکی ہماری ان پریشانیوں کا حل کیسے بتا سکتی ہے اور ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے، لیکن دیکھیے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے اس کا دوسرا مصرع لکھ دیا، دوسرا مصرع جوڑا پورا کر دیا۔ اس لیے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے، کسی انسان کو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر کچھ ہنر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر ایک انسان کے اندر تمام صفاتیں نہیں ہیں، دنیا کے کسی انسان کے اندر تمام ہنر نہیں ہے۔ ہاں کسی کو دنیا میں ڈاکٹر بنایا جائے تو کسی کو عالم بنایا جائے گا، کسی کو اگر ٹیلر بنایا جائے تو کسی کو ہیرو بنایا جائے گا، دنیا میں کسی کو اگر حافظ بنایا جائے تو کسی کو قاری بنایا جائے گا، لیکن ایک انسان کے اندر تمام ہنر نہیں ہو سکتے ہیں، تمام صفت نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آئے انسانوں تمہارے نزدیک ایک حقیقی انسان جس کے پاس کچھ بھی ہنر نہ ہو اگر آ جائے تو تم ایسا نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو۔ میرے بھائیوں ایک شعر نے کیا یہی جملہ کہا تھا کہ تر الرجل النحیف فتزدریہ، اے لوگو جب تم کمزور انسان کو دیکھتے ہو تو تم اسے حقیر سمجھتے ہو، لیکن وفی اصوابہ اسد مصیر، اس کے کپڑے میں بھی ایک مضبوط شیر چھپا رہتا ہے، اس کے کپڑے میں ایک مضبوط شیر چھپا رہتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا۔ یہ جو چوٹیا جو زمین میں رینگتا ہوا نظر آتا ہے اور بالکل پیر کے تلے نیچے چلتی ہے، یہ چوٹیا جس کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو وجود میں کیوں لایا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ چیونٹیوں نے انسان کو بہت بڑا سبق دیا ہے، ان چیونٹیوں نے انسان کو بہت بڑا درس سکھلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک چیونٹی اپنے سامان لے کر خوراک لے کر کسی دیوار پر چڑھتی ہے، تھوڑی دور جاتی ہے، پھر نیچے اتر آتی ہے، پھر تھوڑی دور جاتی ہے، اسی طرح کرتے کرتے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک انسان کو یہ میسج دے رہا ہے، ایک انسان کو یہ سبق دے رہا ہے، اے انسانوں جب تم کوئی بزنس کرو، جب کوئی تم کاروبار کرو، جب تم کسی فیکٹری کا مالک بنو، جب تم اس دنیا میں کسی کاروبار کے مالک بنو، تمہارے پیچھے اتنے حاسدین لگیں گے، تمہیں روکنے کی اتنی کوششیں کی جائے گی، لیکن تم روکنا نہیں، چلتے رہنا، اپنے کام کو جاری و ساری رکھنا، اپنی محنت کو جاری و ساری رکھنا۔ کسی انسان کے چکر میں پڑ کر، کسی دنیا کے ڈر میں پڑ کر اپنا ارادہ نہ بدل لینا، اپنے ارادے سے دنیا کو بدل لینا، لیکن دنیا کے ڈر سے اپنا ارادہ نہیں بدلنا۔ یہ چونٹی نے میسج دیا، سبق دیا۔ جو چونٹی بار بار نیچے اتر آتی ہے لیکن باوجود اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ نیکیوں کو، تھوڑی سی نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تھوڑی سی نیکیوں کے یہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھ کے کیا ہوگا، ہم تو فرض ادا کر لیے، سنت پڑھ کے کیا ہوگا، یہ چھوٹی سی نیکیاں کر کے کیا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اے لوگوں اگر ایک سیکنڈ کا بھی وقت ملے اور اس میں تمہاری نیکیاں آ رہی ہے تم اس کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھنا، ہرگز تم اس کو معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے ذریعے معاف کر دے۔ اور لوگوں ایک انسان جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دائیں پیر کو مسجد کے اندر رکھے اور جب نکلے تو سب سے پہلے بائیں پیر کو نکالے، اسی طرح جب قضاء حاجات کے لیے جائے تو سب سے پہلے بایاں پیر رکھے اور جب نکالے تو دایاں پیر نکالے۔ اس کا مطلب ہے ہماری اچھائی میں سب سے پہلے دایاں آگے رہے، یعنی ایک سیکنڈ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں پیر اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک سیکنڈ کا وقت لگے گا، لیکن قرآن تو ہمیں نیکیوں سے جوڑ رہا ہے، اسلام ہمیں نیکیوں سے جوڑ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب سب سے پہلے مسجد کے اندر جاؤ، اچھی جگہ میں جاؤ، نیکی کی جگہ میں جاؤ، مقدس جگہ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جاؤ، سب سے پہلا قدم جو رکھو تو دایاں رکھو،
मेरे प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है कि दोनों पैर को अगर रखेंगे, एक सेकंड का इधर उधर, एक सेकंड का हेर फेर, एक सेकंड के इधर उधर होगा। लेकिन इस्लाम तो हमें ये कहता है एक सेकंड ही क्यों ना हो, उसमें भी तुम्हें अगर कुछ नेकियां मिल रही तो उसको ले लो, उसको हकीर न समझो। ओ लोगों, आओ मैं तारीख पर आपको नजर दौड़ाता हूँ, तारीख के कुछ वाकयात आपके सामने रख रहा हूँ। एक इंसान था जिन्होंने दुनिया में 97 इंसान को कत्ल कर डाला था। बहुत बड़ा पहलवान इंसान था, जिस तरह आज के दौर में ग्रेड खा ली है, जो 4-4 केजी पोल्ट्री खा जाते हैं, 2-2.5 केजी चावल खा जाते हैं। बहुत बड़ा इंसान, पहलवान इंसान था, जिन्होंने दुनिया के अंदर 97 इंसानों को कत्ल कर डाला था। लेकिन खौफ खुदा दिल में जारी हुआ, अल्लाह का डर दिल में जारी हुआ, फिक्र आखिरत से जुड़े और इस चीज की इस्लाह करने के लिए, नेकियों की तरफ सबकत करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए और इस चीज का हल निकालने के लिए, मसला पूछने के लिए आगे बढ़ता है कि कोई मुफ्ती साहब मिल जाए, उनसे मैं पूछूंगा, आए मुफ्ती साहब, मैंने दुनिया में इतने इंसानों को कत्ल कर दिया, मैंने दुनिया में इतने इंसानों को मार दिया, क्या अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत और रखी या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं? मेरे प्यारे साथियों, फिर वो आदमी आगे बढ़ता है, जब एक मुफ्ती साहब के पास जाता है, वो मुफ्ती साहब से ये चीजें बताते हैं, आए मुफ्ती साहब, मैंने दुनिया में 97 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या अल्लाह ताला हमारे नसीब में जन्नत लिखे या नहीं? वो मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं नहीं, इतनी आदमी को कत्ल कर दिए, इतने आदमी को मार दिए, कैसे तुम जन्नती हो सकते हो? उन्होंने मारे गुस्से के अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसको भी मार दिया, उसकी भी गर्दन पर तलवार चला दिए। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर एक ऐसा मुफ्ती से उनकी मुलाकात हुई जिनसे ये फतवा पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, तुम 98 इंसान को कत्ल कर चुके हो, तुम्हें जन्नत कैसे मिल सकती है? उन्होंने उसको भी मार दिया। इसी तरह करते करते 100 इंसानों का कातिल बन गया, 100 इंसानों को मकतूल कर दिए, 100 इंसानों को मार दिए। फिर आखिर में लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा एक मुफ्ती है, उसके पास जाओ और फतवा तलब करो कि हमने 100 इंसानों को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह हमारे नसीब में जन्नत लिखी या नहीं? वो आदमी आगे बढ़ता है और जैसे आगे बढ़ता है और करीब था कि उस मुफ्ती के पास पहुंचे, बीच में आधा फासला रह गया था, यानी 100 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर को क्रॉस कर चुका था। इतने में रास्ते में मलकुल मौत आ गए, अजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, यानी रूह को कब्ज करने वाले, इंसान की मौत को लेने वाले। उस वक्त उनकी मौत हो गई, रास्ते में, बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई, यानी वो अच्छे मुफ्ती के पास पहुंच नहीं पाए। मेरे प्यारे साथियों, फिर मौत जब उनके वाक़े हो गए, इंतकाल जब हो गया, तो फिर ऐसा मामला और ऐसा नौबत आ गए कि फरिश्ते ऊपर से आ गए, यानी अच्छे इंसानों के लिए, अच्छी रूह को लेने के लिए भी फरिश्ते आ गए और बुरे रूह को लेने के लिए भी फरिश्ते आ गए और आपस में झगड़ा करने लगे, आपस में बहस मुबाहिसा करने लगे। और जो जन्नती वाले फरिश्ते हैं, जो नेक रूह को लेने वाले फरिश्ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको नेक और इल्लीन में जगह देंगे, और जो यानी बुरे रूह को लेने वाले हैं, बुरे इंसान की रूह को लेने वाले हैं, वो भी आकर कहने लगे नहीं, हम इसको सिज्जीन के अंदर दाखिला कराएंगे। यानी मेरे प्यारे साथियों, नेकी करने वाले फरिश्ता कह रहा है, ऐ लोगों, इन्होंने नेकियों की तरफ सबकत किया है, नेकियों की तरफ आगे बढ़ा है, इसलिए हम इसको नेक जगह में जगह देंगे। और बुराई, और जो इंसान इस दुनिया में बुराई करता है, जो इंसान गुनहगार है, उसकी रूह लेने के लिए मेरे प्यारे साथियों जो फरिश्ते आए थे, वो ये कह रहे थे नहीं, इसने 100 आदमी को कत्ल किया है, इसने 100 आदमी को मारा है, इसने 100 आदमी को कत्ल किया है, लिहाजा इसकी रूह इल्लीन में नहीं, सिज्जीन के अंदर हम डालेंगे। आपस में जब बहस मुबाहिसा शुरू हो गए, जब फैसला बीच में कर दिया गया, और क्या फैसला हुआ कि अगर ये नेकियों की तरफ सबसे ज्यादा आगे कदम रखा है, यानी अगर ये 100 कदम में 51 कदम नेकियों की तरफ गया है, उस मुफ्ती तक पहुंचने में गया है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसको जन्नती करार दिया जाएगा। ये अगर आधा रास्ता क्रॉस नहीं कर पाया है, आधा रास्ते से इधर ही रह गया है, तो इसको फिर जहन्नम में करार दिया जाएगा। इस्लाम तो ये कहता है कि ये कदम ही, एक कदम में आगे बढ़ने से, एक कदम सबकत करने से, नेकियों की तरफ एक कदम आगे बढ़ने से, इस्लाम हमें नेकियों से जोड़ रहा है और कह रहा है कि वो इंसान जन्नती है, वो इंसान जन्नती है क्योंकि उन्होंने नेकियों की
तरफ सबकत किए हैं। आए लोगों, आए इस दुनिया में गुनाह करने वालों, बुरे इरादा रखने वालों, इस्लाम ये कहता है, हदीस ये कहती है कि कोई इंसान अगर गुनाह का इरादा कर ले और वो चला जाए, गुनाह करने के लिए चला जाए, अल्लाह फरमाता है एक गुनाह लिख दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो गुनाह करता तो फिर उसका गुनाह लिखा जाता है। लेकिन कोई इंसान जब नेकियों की तरफ आगे बढ़ता है, ये एक नेकी लिख दिए जाते हैं। वो अगर भले ही उस नेकी को ना करे, यानी सिर्फ इरादा और नीयत करने से, अच्छा इरादा और अच्छी नीयत करने से इस्लाम हमें नेकियों से जोड़ रहा है और ये कह रहा है, आए लोगों, ये कदम भी तुम्हारा अगर नेकियों की तरफ है, खैर के मामले में है, अच्छाई की तरफ है, तो तुम्हें इस्लाम जन्नत की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इस्लाम तुम्हें जन्नत से जोड़ रहे हैं। इस तरह मजहब तुम्हें कहाँ मिलेगा? कौन सा ऐसा मजहब है जो इस्लाम जैसा है और लोगों को हमेशा नेकियों की तरफ जोड़ता है? मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा मकसद और मेरा मौजू था कि हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात है, हर एतबार में कुछ ना कुछ खुसूसियात है। वो बादशाह जिन्होंने पूरी जिंदगी बगैर अल्लाह को याद किए हुए, वो बादशाह जिन्होंने कभी अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, वो बादशाह जिन्होंने कभी अल्लाह को एक सजदा नहीं किया, मोटे मोटे बिस्तर पर मोटे मोटे चादरों में सोए रहे। लेकिन एक मामला और एक ऐसे वाकयात में आपको बता रहा हूँ। एक दिन वो बादशाह किसी काम से दूसरे बादशाह के पास चला गया। ये झारखंड का जो सरकार है, ये झारखंड की जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट के दिल के अंदर एक दिन ख्वाहिश जागे कि मुझे बिहार जाना है, वहां जाकर नीतीश कुमार से मिलना है। इनके अंदर ख्वाहिश जागी, एक बादशाह दूसरी बादशाह से मुलाकात करने के लिए जाया करते हैं। इसी तरह किसी काम से वो बादशाह गया। मेरे प्यारे साथियों, उसकी एक कन्या, एक गुलाम थी, उसकी एक खादिमा थी, उसकी एक नौकरानी थी। इत्तेफाक से क्या मामला पेश आया, वो नौकरानी ये अपने दिल में सोचा, आय अल्लाह, मैं तो जमीन में और इसी चटाई में, टूटी फूटी चटाई में बैठकर लेटकर इसी में सोकर अपनी जिंदगी गुजार लिए, लेकिन या अल्लाह ये बादशाह तो आज घर में नहीं है। या अल्लाह मेरे अंदर ख्वाहिश जागी है, या अल्लाह दिल में ये तमन्ना हुआ है कि मैं बादशाह के बिस्तर में सोऊं। आय अल्लाह दिल में ये गैरत जागी है, दिल के अंदर ये ख्वाहिश जागी है कि मैं बादशाह के बिस्तर में थोड़ी देर आराम कर लूं और देखूं कि बादशाह के बिस्तर में सोने से कितनी राहत है, कितना मजा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो लड़की, वो खादिमा, वो गुलाम उस बिस्तर पे सो जाती है, लेकिन कब से उसको नींद नहीं आ रही थी। चटाई में बैठकर, चटाई में सोकर उसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे मोटे कंबल में, मोटे बिछाने में, मोटे चादर में सोए, इतने में नींद गालिब आ गए मेरे प्यारे साथियों। और इत्तेफाक से वो बादशाह भी हाजिर हो गए। बादशाह ने देखा एक गुलाम है, एक खादिमा है, एक नौकरानी है और बादशाह के बिस्तर में सोए हैं। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने डंडा मंगवाया, उन्होंने चाबुक लाया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि जिस्म से लहू लहान, खून से लहू लहान, जिस्म से खून बहना शुरू हो गया। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, हर चीज के अंदर कुछ न कुछ खुसूसियात है। इतना खून निकल रहा है, इतना जिस्म से खून बह रहा है, लेकिन बावजूद वो लड़की, बावजूद वो खादिमा हंस रही है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, हैरत में पड़ गए, क्या बात है? वो खादिमा, मैं तुम्हें इतना मार रहा हूँ, इतना तुम्हारे ऊपर लाठियां चलाए जा रहे हैं, तुम्हें पिस्तौल से मारा जाता है, लेकिन रोने के बजाय तुम हंस क्यों रहे? मुझे समझ में नहीं आता। वो लड़की कह रही है, बादशाह, मैं इसलिए हंस रही हूँ, मुझे एक घंटा तुम्हारे बिस्तर में, तुम्हारे नरम गरम बिस्तर में, तुम्हारे मोटे चादर में सोने से इतने कोड़े लगाए गए, इतने मारे गए, लेकिन वो अल्लाह वो अल्लाह जो तमाम दुनिया का रचनाता और रचयकार है, जिसके मोटे बिस्तर में तुम जिंदगी भर गुजार दिए, जिंदगी भर सोए रहे, वो अल्लाह तुम्हें कितने डंडे मारेंगे, वो अल्लाह तुम्हें कितने आजाब देंगे, वो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में सजाए देंगे। वो अल्लाह जिसका नाम जिंदगी में, दुनिया भर में आपने एक बार भी नहीं लिया, नरम गरम मोटे बिस्तर में हमेशा सोते रहे, अल्लाह को कभी याद नहीं किए। हम तो जिंदगी भर टूटी फूटी चटाई में
चादरों में अपनी जिंदगी गुजार दी, तुम तो मोटे मोटे बिस्तर में सोए, अल्लाह को याद नहीं किए। हम तो हमेशा अल्लाह को याद करते रहे, इसलिए मैं हंस रही हूँ। आए बादशाह, मैं ये घंटा तुम्हारी इन नरम गरम बिस्तर में सोने से मुझे इतनी सजाएं मिली, अब तुम बताओ कि अल्लाह तुम्हें कितनी सजाएं देंगे। बादशाह के दिल में ईमान गैरत जाग गए, बादशाह के दिल में ईमान पैदा हो गया, ईमान में तरोताजा आ गए, बादशाह का ईमान ताजा हो गया और कहने लगा, हो मेरी बेटी, आज के बाद से तुम मेरी खादिमा नहीं बल्कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो। वो खादिमा, तुम्हारे इस जुमले ने मुझे झंझोड़ दिया है, तुम्हारे इस कौल ने मुझे झंझोड़ दिया है। आज के बाद से मैं कभी इन नरम गरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो जाऊंगा और जंगलों में पत्ते खाकर, जंगल के पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। आज के बाद से इन मोटे बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, एक छोटी सी चीजों पर दिल की दुनिया बदल जाया करते थे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम और आप हैं कि सुनने के गाजी है, किरदार के गाजी नहीं। एक छोटे जुमले ने उनके दिलों को झंझोड़ दिया और वो बादशाह जो हमेशा इन मोटे नरम गरम बिस्तर पर सोया रहता था, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया कि जंगल में अपनी जिंदगी गुजारो बसर कर लूंगा, जंगल में पत्ते खा कर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात है। इसी को तो कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम। आए लोगों, आए मर्दों, तुम्हारे सामने अगर कोई गरीब इंसान आ जाए, तुम्हारे सामने अगर कोई मामूली इंसान आ जाए तो तुम उसका मजाक ना उड़ाओ। कोई पागल किस्म का इंसान भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसका मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि हो सकता है आसा अयकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि कौन अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा है। तुम जानते नहीं हो कि कब किसको अल्लाह माफ कर दे, तुम जानते नहीं हो कि कब अल्लाह किसको जन्नती कर दे। मेरे प्यारे साथियों, कोई इंसान अगर इस दुनिया में चाहे कि हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, हमने दुनिया में इतनी अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह हमें जन्नत देकर ही रहेगा, नहीं, अल्लाह तो अपने रहमो करम से हमें जन्नत देगा। अल्लाह हमें अपने रहमो करम से हमारे गुनाहों को बख्शेंगे। और इसी चीज को तो जुमले में कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा। ऐ अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा गुनाह किया है। या अल्लाह, तू अपने रहमो करम से हमें माफ कर दे। अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन इंसानों, हम ये कहेंगे कि नमाज पढ़कर हम अपने गुनाहों की बख्शिश करा लेंगे, हम रोजे रखकर अपने गुनाह की बख्शिश कर लेंगे। नहीं, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, हम अपने रहमो करम से इंसान को माफ करेंगे। लिहाजा ये तसब्बुर न करो और किसी इंसान को देखकर जन्नती और जहन्नमी का फैसला न बनाओ। वो औरत जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी और फर्ज की भी फर्ज की नमाज भी अदा किया करती थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा पड़ोसी के साथ क्या हुस्न सलूक है, लोगों ने बताया ये अपने पड़ोसी को हमेशा गाली दिया करते हैं, ये अपने पड़ोसी को हमेशा तकलीफ दिया करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो औरत, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो गए, तुम्हारी नमाजें खत्म हो गए। जिन्होंने इस दुनिया में किसी इंसान का हक अदा नहीं किया, जिन्होंने इस दुनिया में किसी पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, उनकी नमाजें कोई काम नहीं देंगे, उनकी इबादतें कुछ काम नहीं देंगे। इसलिए आए इंसानों, किसी इंसान को भूल कर तकलीफ नहीं देना, किसी इंसान को भूल कर चोट ना पहुंचाना, ठेस ना पहुंचाना। नमाज खत्म हो जाएगी, तहज्जुद की नमाज चली जाएगी। लेकिन एक औरत ऐसे भी गुजरे हैं जो हमेशा
तो तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर पाती थी, लेकिन फर्ज नमाज अदा करती थी, लेकिन पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं दी है, पड़ोसी को कभी सताया नहीं है। अल्लाह के नबी के सामने जब इसका तज़किरा किया गया, आपने फरमाया या औरत जन्नती है, या औरत जन्नती है जिसने अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं दी है। ओ लोगों, जन्नत कब किसके मुकद्दर में बन जाए, हम इंसान नहीं है किसी के हक में फैसला करने वाले कि किसी के एक बुराई देखकर हम उसको ये कह दे कि तुम जहन्नमी, किसी के एक नेकी देखकर हम ये कह दे कि तुम जन्नती, हम ये फैसला करने वाले नहीं है, ना ही हमारे ये इख्तियार में है कब अल्लाह किसको जन्नती कर दे, कब अल्लाह किसको जहन्नमी कर दे। इसलिए इंसानों किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो मामूली सी नेकी क्यों ना हो। ओ लोगों, एक ऐसी औरत भी थी जो तवाइफ थी, एक ऐसी औरत भी थी जो बदचलन थी। जब उनके सामने कुत्ता अपनी जुबान निकले हुए उनके सामने प्यासे की हालत में दौड़ता हुआ या उस औरत ने अपनी ओढ़नी को, अपने दामन को कुएं में डाल दिया और पानी उठाकर उसको निचोड़ करके उसके जुबान में डाल दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरत जन्नती है। लेकिन एक औरत जिन्होंने कि बिल्ली को बांध कर रखा और तरपा कर मार दिया, उसको खाना नहीं खिलाया, मेरे प्यारे साथियों बांध कर रखा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया यह औरत जहन्नमी है। इसलिए इंसानों किसी की छोटी सी नेकियां और किसी की छोटी सी गलतियां देखकर आप ये ना कहें, आप ये भी ना कहें कि इसने बहुत बड़ी नेकियां की तो ये जन्नती है, इसने बहुत सारे गुनाह किए हैं तो ये जहन्नमी है। कब अल्लाह किसकी अमाल से खुश हो जाए, कब अल्लाह किसको जन्नत दे दे। इसलिए हमारे ये इख्तियार में नहीं है कि कौन इंसान क्या करता है नहीं करता है, हम उसके पीछे पड़े रहे। आए इंसानों, कुरान ये कहता है लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। कोई इंसान अगर इस दुनिया में बुराई करता है, हमें उसको समझाना चाहिए, उसके पीछे पड़ जाना नहीं चाहिए और किसी इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी उस बुराई से नफरत करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कुछ न कुछ गलतियां ना निकले, जिसके अंदर कुछ न कुछ बुराइयां ना निकले। अगर आप किसी इंसान की बुराई देखकर उससे नफरत करेंगे तो दुनिया में फिर कोई ऐसा इंसान नहीं बचेगा जिससे आप नफरत ना करें। इसलिए किसी इंसान से नफरत ना कीजिए, बल्कि उसकी बुराई देखकर नफरत कीजिए। आए लोगों, और ये सोचते रहिए उसके लिए उसका अमाल है, हमारे लिए हमारा अमाल है। हमें माँ के पेट से इस दुनिया में अकेला आना पड़ा है और कब्र के अंदर भी अकेला जाना है। कुल्लु बाबिन दाखिलुहु, मेरे प्यारे साथियों, अल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसानों को दाखिल होना है और अकेले अकेले दाखिल होना है, अपने अपने अमालों का हिसाब व किताब देना है। इसलिए किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हो सकता है ये हमसे ज्यादा बेहतर हो सकता है ये हमसे ज्यादा नेकियां करने वाले हो सकता है कि अल्लाह के नजदीक ये सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, क्योंकि अल्लाह ने क्लियर कह दिया कि लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। लिहाजा इंसानों, किसी को इस दुनिया में हकीर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के कपड़ों के अंदर एक मजबूत शेर छुपा हुआ रहता है। इसीलिए तो बिलाल जो काले कलूटे हबसी कोयले से भी ज्यादा काला, लेकिन अल्लाह के नबी उसको अजान देने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और जन्नत के अंदर जब आप गए, आपको मेराज कराए गए, आपने जन्नत में बिलाल की आवाज, जूते की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी दुनिया में आए, सहाबा के अंदर ऐलान किया, आए लोगों, बिलाल के अंदर वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से बिलाल की जूते की आवाज जन्नत में सुनाई दे रहे हैं। बिलाल ने कहा, सब ने कहा कि बिलाल इस दुनिया में जब वजू से रहता है, जब बिलाल वजू करता है, जब उनका वजू टूट जाता है, फिर दोबारा बिलाल वजू कर लेता है, गोया कि बगैर वजू के बिलाल नहीं रहते हैं। ये बिलाल की खूबी है जिसकी वजह से जन्नत में बिलाल की जूतों की आवाज सुनाई देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये सुनना था कि पूरे लोग सहाबा इकराम आपस में कहने लगे, ऐ बिलाल आप हमारे घर जाइए, हमारे घर में एक बेटी है, खूबसूरत बेटी है, आप उनसे निकाह कर लीजिए, आप उनसे रिश्ता कायम कर लीजिए। इसी चीज का तो नाम है इस्लाम, कि किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वालों पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी बड़े को छोटे पर फजीलत नहीं, किसी बिहारी को किसी झारखंड वाले पर फजीलत हासिल नहीं है।
اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑا ہے تو تقویٰ کے لحاظ سے بڑا ہے، وہ متقی اور ایماندار کے لحاظ سے بڑا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ذات برادری پر فخر مت کیجیے، زمانہ جاہلیت کی روایت کی زمانہ جاہلیت کا روایت اختیار مت کیجیے۔ کچھ لوگ آج دینی چیز کو لے کر مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دینی چیز اور دنیاوی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو دنیاوی چیز مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اس طرح عالم ہیں، وہ اس طرح عالم ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں، لیکن کبھی اپنے ضمیر پر جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ٹائٹل مل جانے سے کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے؟ ٹائٹلوں پر لوگ ناز کرنے والوں، قرآن و حدیث کا جنازہ نکال رہے ہو۔ کسی انسان کو ٹائٹلوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ اگر ٹائٹل پر ناز کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کا جنازہ نکال رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے نہیں ہے خود اس کو پتا نہیں ہے، لیکن ٹائٹلوں پر ناز کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے فخر اور غرور اپنے دلوں کے اندر سے نکال دیجئے۔ 2 منتر پڑھ کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگنی میلے پروہتم یجنس سے دبم۔ آدمی نہیں آؤ، کیا بولے بھائی؟ آدمی سن کر کے یہ لوگ آئے۔ 10-15 منٹ چلا دیتے ہیں۔ اگنی میل پروہتم یجنس سے دبم ریوتیجم ہوترام رتن دھاتمم۔ یہ منتر کا پہلا سلوکا جو ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کچھ کرو اس ایشور کے نام سے کرو، اس اللہ کے نام سے کرو جو سب سے پہلے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نام سے کرو، ایشور کے نام سے کرو۔ دنیا کے اندر جب مسلمان کچھ کام کرتا ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی نہیں، چلیے مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی مسلمان اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اللہ کا نام سے نماز کو شروع کرتا ہے۔ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی جب بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نام سے سوتا ہے، جب جاگتا ہے تو اللہ کا نام لے کر جاگتا ہے۔ یہاں تک کہ آئے لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کا بھی آغاز انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس خط کا بھی آغاز کیا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر وہ چیز کسی دھرم کے اندر ملتا ہے، کسی مذہب کے اندر ملتا ہے، وہ ایک محض دھرم ہے، وہ فقط اسلام ہے جو ہمیشہ انسان کو اللہ کے نام سے جوڑتا ہے اور یہ کہتا ہے انسانوں جب بھی کچھ کام کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ یہاں تک انسان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے، جمع کرتا، ہم بھی صحیح کرتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کو اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے جب کچھ بھی کرو، عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، کہ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب بھی کچھ کرو یہ سمجھو، اپنے دل میں گمان رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آئے لوگوں، یہ منتر کا سلوک ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کچھ کرو اس ایشور کے نام سے کرو جو سب سے پہلے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے عیسیٰ سے پہلے کسی کا تذکرہ دیکھا، رام سے پہلے کسی انسان کا تذکرہ دیکھا، ہم نے رام سے پہلے کسی بڑے ہستی کا تذکرہ دیکھا، لیکن اللہ کی ذات سے پہلے کسی چیز کا ہم نے تذکرہ، کسی چیز کا ہم نے نام نہیں سنا۔ دیکھیے دنیا میں بڑے سے بڑی ہستیاں آئے، کوئی بھی اس دنیا میں مہان پرش آئے، ان سے پہلے کسی اگر بیٹا آیا تو اس کے باپ کا ذکر ملتا ہے، باپ آیا تو دادا کا ذکر ملتا ہے، دادا آیا تو پردادا کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس منتر میں کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرو جو سب سے پہلے ہیں۔ اگر پہلے کسی ذات کا پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے لوگوں، آسمان بنانے سے پہلے، زمین بنانے سے پہلے، انسان اور جنات کو اس دنیا میں آباد کرنے سے پہلے، انسان کا وجود ہونے سے پہلے بھی اگر کسی ذات کا پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ اللہ ہے تو اللہ کہاں ہے، اللہ کا چہرہ کس طرف ہے، سوال کر دیا۔ اب جواب کیسے دیں گے؟ کوئی اگر پوچھے لوگوں اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کدھر ہے، اللہ کا چہرہ کدھر ہے، اللہ ہے تو اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ کوئی عیسائی پادری مجوسی یہودی اگر آپ سے سوال کرے اللہ اللہ چلاتے رہتے ہو، اللہ اللہ کا نام لیتے رہتے ہو، لیکن بتاؤ اللہ ہے تو کہاں؟ هو الرحمن علی العرش استوى
وہ اللہ تو عرش پر مستوی، اللہ کا چہرہ کدھر ہے یہ بتاؤ. آپ یہ کہنا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو ایک روشنی کے مانند ہے، اور اگر چاروں طرف باؤنڈری ہو، چاروں طرف گول دائرہ ہو، اس کے بیچ کے اندر اسٹیڈیم جیسے گھر بنا دیا گیا ہو، اسٹیڈیم جیسے ایک دیوار کھڑی کر دی گیا ہو، اور اس کے بیچ میں ایک چراغ اگر رکھ دیے جائے، ان کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی روشنی کدھر ہے. گویا کہ وہ پورب کی طرف بھی اس کی روشنی دکھائی دے گی، پشچم کی طرف بھی اس کی روشنی دکھائی دے گی، ہر سمت میں ہر جانب میں اس کی روشنی پھیلے ہوئے رہیں گے. اس لیے کوئی اگر سوال کرے کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے، تو آپ ڈائریکٹ یہ بتا دینا اللہ کا چہرہ، اللہ نور ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلے ہوئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا چہرہ کدھر ہے. جواب ہو گئے. دنیا میں سب سے پہلے اللہ ہے اللہ، اور سب سے آخر میں اللہ رہیں گے. یہ زمین فنا ہو جائیں گے، آسمان فنا ہو جائیں گے، چاند ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، لیکن کسی چیز کی اگر باقی رہنے کا ذکر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے لیکن رب کا چہرہ باقی رہے گا. یہاں تک کہ انسان یہ دیکھے گا کہ لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے، جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ کب گر جائے گا ماں کو ہوش آباش نہیں رہے گا. دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے. ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، صرف رب کا چہرہ باقی رہے گا، رب کی ذات باقی رہے گی. یہ منتر ہمیں اور آپ کو وہی پیغام دیے. مہید بس سے سبھی تو پرستوتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں، جس کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں. بتاؤ دنیا کے اندر کیا کسی انسان کی ساری کے لیے ساری تعریفیں ہیں؟ کسی ہستی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں؟ نہیں. دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کی مدد کر سکتا ہے تو دوسری کی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو ایک انسان کو بھی کھانا کھلاتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو. ایک روشنی سورج کے ذریعے ایک ہندو کے گھر میں بھی پہنچاتا ہے، ایک مسلمان کے گھر میں بھی پہنچاتا ہے. جو سورج کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ کون اللہ کو یاد کر رہا ہے، کون اللہ کا نام لے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اللہ کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. وسور دیامانا، وہ ایشور بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑا کرپالو ہے، بڑا دیابان ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا ایک غلام ہے، ہم نے اس کو بازار بھیجا، ہم نے اس کو بھاگلپور کہلگاؤں بازار بھیجا اور کہا میرے غلام میں نے تمہارے ہاتھ میں 100 روپیہ دیا، جاؤ ہمارے لیے کچھ سامان خرید کے لے کے آؤ. وہ غلام جائے گا اور سامان خرید کر لے کے آئے گا، لیکن راستے میں چوروں نے، ڈکیتوں نے، لٹیروں نے اس کا مال لوٹ لیا. وہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کہیں گے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. پہلی بار معاف کر دیے، دوسری بار گئے پیسہ گم کر دیا، بادشاہ نے معاف کر دیا. تیسری بار گئے پیسہ پھر کوئی چرا لیا یا پھر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا لیا اور بادشاہ سے کہہ دیا وہ میرے آقا، وہ میرے مالک، میں نے اپنے پیسے کو پھر سے گم کر دیا. بادشاہ کہیں گے نہیں اب تمہاری خیریت نہیں، میں نے تم کو پہلی بار معاف کیا، دوسری بار کیا، تیسری بار معاف کرنے والا نہیں ہوں. لاؤ وہ 100 روپیہ بھی لاؤ، وہ 200 روپیہ بھی لاؤ، وہ 500 روپیہ بھی لاؤ، جتنے میں نے تم کو دیا سارے پیسے لے کے آؤ. دنیا میں کوئی انسان کسی کو معاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن کوئی اگر ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کوئی انسان اگر اس دنیا میں گناہ کر کے اس طرح ان کی نیت اور سوچ پیدا ہو گئے ہیں کہ اللہ ہم تو زندگی بھر گناہ کرتے آئے، کیا آپ تیرے سامنے منہ دکھاؤ یا اللہ تو ہم کو معاف نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرے گا. اللہ کہتا نہیں، میں غفور رحیم ہوں، وسر دیامان، میں رحم کرنے والا ہوں، اپنے کرپا سے، اپنے دیالو سے، اپنے دیابان میں ہوں، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کے اوپر اٹھائیے، اللہ سے گر گرائیے. اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتا ہے امید ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دوں. اس لیے اگر آپ
गुनाह करके करके अपने दिल को मुर्दा कर चुके हैं और आप ये सोच रहे कि हमारे इन गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। नहीं, आप आज ही अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। रब पर भरोसा रखिए। दुनिया में रब के अलावा कौन है जो हमारी शुभकामना, हमारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। यचित यो यो पिम्मिम्बा नस्तस्मा देवी सोरी रिसा, यचित यो यो मांगो उसी से, वही है सब कुछ देने वाला, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। उदूनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझी से, मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ। एक सहाबी, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है अल्लाह के नबी, रास्ता काफी दूर है, रास्ते में जंगली जानवर भी है, जंगली जानवर का खतरा है, वहां से जानवर चीर फाड़ कर डालते हैं, रास्ते में जंगली जानवर का खतरा है, आप हमें मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने कहा, आए मेरे सहाबी, आए फला, जब रास्ते में तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाए, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना। वइज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम्हें किसी चीज की मदद पड़ जाए, मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करते रहना, सब कुछ अल्लाह तुम्हें देने वाला है। आए लोगों, एक वाकया बताकर मैं आपके सामने रुखसत ले रहा हूँ। 3 आदमी दरिया का सफर कर रहा था, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक हिंदू भाई, 3 आदमी दरिया का सफर कर रहा था। बीच रास्ते में गए, नाव और कश्ती हिलडुल करने लगे। इतने में मुसलमान ने पुकारा, इतने में मुसलमान ने अल्लाह को याद किया और अल्लाह को पुकारा, अस्मल्लाह संकट मोचन, अस्मल्लाह में संकट मोचन, ऐश्वर तू हमें इस मुसीबत से बचा ले, ये जो कश्तियां और नाव हिलडुल कर रही है, अल्लाह तू हमें बचा ले। अल्लाह ने उस मुसलमान को बचा लिया। फिर ईसाई ने कहा, गॉड, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, और ईश्वर तू मुझे बचा ले। ईसाई को उसके रब ने बचा लिया। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई थे, उन्होंने कभी ब्रह्मा का नाम लिया, उन्होंने कभी राम का नाम लिया, उन्होंने कभी श्याम का नाम लिया, उन्होंने कभी सीता का नाम लिया। मेरे प्यारे साथियों, कोई मदद करने के लिए नहीं आए और वो जमीन के अंदर, नदी के अंदर, पानी के अंदर डूब कर मर गए। पुनर्जन्म, उनकी किताबों में पुनर्जन्म, पुन मनी फिर ना, आह मने वजूद में आना, पुनर्जन्म, जन्म मने वजूद में आना, पुनः मने फिर से, जन्म मने वजूद में आना, दोबारा जन्म उनका होता है। इस दुनिया में आवागमन होता है कि कोई भैंस की शक्ल में, कोई भैंस की शक्ल में, कोई बिल्ली की शक्ल में, जो जैसा अमल करेगा इस दुनिया में उसको ऐसा आवागमन किया जाएगा। योनि के अंदर उसके रूह को डाला जाएगा। लेकिन पुनर्जन्म, जब उसको इंसान बनाया जाएगा अच्छे करतूत की वजह से, वो इंसान अच्छे करतूत की इस दुनिया के अंदर, और उसको इंसान का जन्म मिल गया। जब इंसान का जन्म मिला, सारे देवी देवता उनके पास आ गए और सवाल करने लगे, आए लोगों, आए फला, बताओ दुनिया के अंदर तुमने कौन से अच्छे अमाल किए थे जिसके बदौलत ईश्वर ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया, तुम्हें बिल्ली का जन्म नहीं दिया, भैंस का जन्म नहीं दिया, तुम्हें कुत्ते का जन्म नहीं दिया, बल्कि इंसान का जन्म दिया। वो आदमी कहता है, चल हट, मुझे क्या मेरी मदद करने और क्या मेरे सुनने के लिए आ गए, इतने रहने के बावजूद भी मेरी मदद न कर सके। मेरे प्यारे साथियों, फिर उन सब ने बताया, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। क्या आप खाओ हिंदुस्तान के गुण गाओ, पाकिस्तान गए, राम का नाम लिया, राम मदद करने के लिए आ ही रहे थे। इतने में फिर सीता का नाम लिया। अब ये बताओ, तुमने राम का नाम लेना छोड़ दिया और सीता का नाम पुकारना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, बताओ, तुमने राम का नाम लेना छोड़ दिया तो राम तुम्हारी कैसे मदद करेंगे। सीता, तुम ये बताओ, तुम तो तुम्हारी आखिरी बार तुम्हारा नाम लिया गया था, लेकिन सीता कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हो। मुझे टाइम लगेगा, मैं मर्द का लिबास इख्तियार कर रही थी। मेरे प्यारे साथियों, बताने का मकसद ये है कि जब भी हम कुछ करें तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, जब भी कुछ मांगे तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता, कोई इंसान हमें कुछ भी नहीं दे सकता है। मैं इन सब में तकरीर को ख़त्म करना नहीं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया। इंशाल्लाह इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पहले अगर टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं चला था, क्योंकि सुबह और चलाएंगे, नज़म पढ़ेंगे 3:30 तक, इसको पूरा कीजिए ना, 3:30 तक। और 10 मिनट बोलिए। तो बात ये है कि मेरी गाड़ी है और पहले अगर आप टाइम दे तो बोलते मैं। खैर, नज़म तो कभी नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ मैं शायद क्या मुनासिब समझा।
تو میں یہ بتا رہا تھا ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے، لہٰذا آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی کی غریبی دیکھ کر آپ اس کو ٹھکرائیے نہیں، آپ اپنے یتیم کے سر میں ہاتھ پھیریے، آپ غریبوں کی مدد کیجیے۔ انسانیت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی آدمی آ جائے آپ ان کی مدد کریں، چاہے کسی بھی دھرم سے ہو۔ کوئی آدمی اگر ڈوب رہا ہے آپ ان کی مدد کسی دھرم کے اعتبار سے نہیں، انسانیت کے اعتبار سے کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اللہ کی مصلحت ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کر رہے ہیں، وہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک کام کرنا، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں میری لاش کو قبر کی طرف لے جانا۔ حضرت علی کہہ رہے تم صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو، میں تمہاری ان باتوں کو بالکل رکھوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا وجہ کیا ہے، تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ فاطمہ کہہ رہے او علی، آپ میرے شوہر ہیں، میں اس سے یہی ثابت کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے یہی بولنا چاہتی ہوں کہ جب میری لاش رات کے اندر رات میں قبر کے لے جائی جائے گی، اس کے اوپر جو کفن رہے گا کسی اجنبی غیر مرد کا اس کے اوپر چہرہ نہیں نظر نہیں پڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دیکھ لیجیے ہندوستان کے حالات کیسے ہیں۔ وہ ہندوستان جس کو لکھنے والا، جس کا سمویدھان لکھنے والا ایک کوئی غیر آدمی اور برہمن ذاتی کے نہیں تھے بلکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جنہوں نے ہندوستان کے سمویدھان کو لکھا تھا، اور آج اس کے اوپر نریندر مودی کو بھی چلنا پڑتا ہے، دیش کے گرہ منتری امت شاہ جی کو بھی چلنا پڑتا ہے، لیکن حجاب کے معاملے میں کرناٹک تباہی اور بوال مچا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 15 مارچ کے اندر یہ رزلٹ جاری کر دیا۔ کیا رزلٹ جاری کیا؟ کہ اسلام کے اندر حجاب کے لیے کوئی انیوریہ چیز نہیں ہے، اسلام میں حجاب چیز کی کوئی چیز اہمیت اور معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ اسلام جو ہمیشہ ایک دوسروں کو پیغام دیتے رہے، آئے انسانوں، جب بھی تم راستے میں چلو، سڑکوں میں چلو، اپنی نظریں جھکا کر، اپنی نظریں نیچی رکھ کر کرو، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ وہ اسلام جو عورتوں کو یہ میسج دیا کہ جب تم بھی کئی بازاروں میں چلو اپنی نظریں جھکا کر چلو، نیچے رکھا کر کے چلو۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن کرناٹک ہائی کورٹ نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھایا، اتنی بڑی غلطی کہ انہوں نے اسلام کو ٹھکرایا اور کہا اسلام میں حجاب کے لیے کوئی انیوریہ جز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم پروٹیسٹ اس چیز پر کریں گے، ہم احتجاج اس چیز پر کریں گے، ہمیں ہمارے اسلام کو دھتکارا، ہمیں اسلام کے بارے میں غلط باتیں بتائے۔ مجھے افسوس تو اس بات پر بھی ہے کہ انہوں نے سمویدھان کو بھی ٹھکرایا، جو سمویدھان ہمیشہ چیخ کر کہتا ہے کہ بھارت میں ایک ہندو کو اتنا ہی ادھیکار ہے، عبادت کرنے کا پوری اجازت ہے، ایک مسلمان کو بھی پوری اجازت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، ایک عیسائی کو بھی پوری اجازت ہے، ایک مسلمان کہ اگر اسلام میں پردہ ہے تو اس کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمویدھان اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن کرناٹک ہائی کورٹ، میں تمہارے اس فیصلے کا سواگت کرتا ہوں، لیکن تمہارے اس فیصلے کو ٹھکراتا بھی ہوں، کیوں تم نے اسلام کے ساتھ سمویدھان کو بھی ٹھکرایا ہے۔ وہ فاطمہ جنہوں نے یہ آواز دیے اور اپنے شوہر سے یہ کہے اے میرے شوہر، میری لاش کو رات کے اندھیرے میں لے جانا، یہ ہمیں اور آپ کو کتنے پردے تک جوڑ رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو یہ جملے کتنے پردے تک لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو وہ جملے شاعروں نے شعر میں کہا، نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ او مسلمانوں، ہم اور آپ کہاں سو رہے ہیں؟
दिन ब दिन हमारे इस्लाम के ऊपर कितने पाबंदियां लग रहे हैं, इस्लाम को ठुकराने की कहाँ कोशिश किए जा रहे हैं। हकीकत में वो शेर जो कहा था कि दुनिया के अंदर मुसलमान एक अकेली कौम रह जाएगी जो पूरी दुनिया इसके ऊपर हुकूमत करेंगे, और मुसलमानों के इन अकीदे को देखकर, मुसलमानों के इन बदतरीन हालात को देखकर एक यहूद भी शर्माएंगे। और में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनून, ये मुसलमान है जिन देख के शर्माए अगून। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनून, ये मुसलमान है जिन देख के शर्माए अगून। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान को देख कर एक यहूदी भी शर्माएंगे। और आप देख लीजिए दुनिया के अंदर मुसलमान ये एक अल्लाह को मानने वाले, लेकिन आज कितने प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। मुसलमानों के अंदर एकसानियत खत्म हो चुके हैं, एकता खत्म हो चुके हैं। मुसलमान आपस में बिखरे हुए हैं, मुसलमान आपस में बढ़ गए हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंतशार में पाई जाने वाली कोई कौम अगर है, दुनिया में सबसे बटी हुई कौम अगर कोई नजर आ रही है तो मुसलमान है। इसलिए मुसलमानों अपने ज़मीरों को जरा परखो, अपने गरीबान में झांक कर देखो कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां आ चुकी है, हमारे अंदर ईमान में कितने कमजोरी आ चुकी है। हम और आप एक प्लेटफॉर्म पर क्यों कायम नहीं है। मुसलमानों, हम ही और आप हैं जिसको अल्लाह ने हमें सब मैसेज दिया, जिसको अल्लाह ने हमें सब खुशखबरी दी है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। आए मुसलमानों, तुम्हें सरबलंद रहोगे, तुम्हें बादशाह बनाए जाओगे, तुम्हें साहिब वक्त बनाए जाओगे, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनाए जाओगे, लेकिन एक शर्त है कि अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। ईमान कैसे पैदा करेंगे? ईमान पैदा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घरों के झगड़ों से उलझना नहीं है, घरों के झगड़ों को खत्म करना है, मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म करना है, आपस में भाई भाई का झगड़ा खत्म करना है, सुन्नी बरेली का झगड़ा खत्म करना है। यही चीज को देखकर तो लोग फायदा उठा रहे हैं, यही चीज को देखकर मुसलमानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, अलग बात है हम सुन्नी है, अलग बात है कोई बरेली है, लेकिन जब एक जगह पहुंच जाए तो हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सब एक हैं। और इसी चीज को तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मुसलमानों तुम सब चाहे कितने ही फिरकों में बढ़ जाओ, आपस में तुम सब मुसलमान हो। और तुम सब ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जितने भी इंसान हैं सब एक माँ और एक बाप से पैदा किए गए हैं। लिहाजा ऐ लोगों, ऐसा न समझो कि कोई सुन्नी है कोई बरेलवी है। मुसलमानों, हम सबको इस वक्त सब जरूरत है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर कायम रहे और एक साथ रहे, किसी के अंदर झगड़ा ना हो, किसी के अंदर विवाद ना हो। ये हमारा जो वक्त गुजर रहा है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर देखो मुसलमान को नजरों से पहचाने जाते हैं। दूर अंदेशी की हमें भी जरूरत है। मुसलमान को उनके लिबास से पहचाना जा रहा है और टारगेट बनाए जा रहे हैं। वो मुसलमान जो बिल्कुल हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमान जो हमेशा एक दूसरे को इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी हमारा अगर पड़ोसी हो, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई दलित हो, हमारा पड़ोसी है। इस्लाम हमें ये कहता है कि आप उनका हक दो। इस्लाम से बढ़कर हमें और आपको कौन सा मजहब मिल सकता है, लेकिन हम और आप इस चीज को ठुकरा दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है कि आपको और हमें बिल्कुल गौर फिक्र और बिल्कुल इत्मीनान और संजीदगी के साथ सोचना है कि आज हम किस हालात से गुजर रहे हैं। हमें और आपको जरूरी है कि हम अपने घरों के झगड़ों से दूर रहें और जो भी हमारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत का जनाजा निकला है, हम इस चीज को बरकरार रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम सब आपस में एकता होने की सबूत कायम करेंगे। हम सब एक हैं, हम सब की माँ एक है, हम सब का बाप एक है, हम सब आपस में एक है। लिहाजा कोई इंसान ये ना सोचे कि वो किसी की औलाद है, वो किसी की औलाद है, वो फला है, वो फला है। और हम ये कहते हैं, आए हिंदुओं, आए क्रिश्चियनों, अगर आवाज मेरी आपके कानों तक पहुंच रही है, ये जो देश आज खत्म बढ़ गया है, हिंदू मुसलमान में डिवाइडेड हो गया है, ये कुछ नेता है जो ऐसे कर रहे हैं। हम सब जनताओं को ये सोचना है, क्योंकि नेता हमारी वोट लेकर, जनता की वोट लेकर सत्ता में आ गए और वो अपने आज वो मौत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और बेचारा गरीब मर रहे हैं, अवाम मर रहे हैं, जनता मर रहे हैं। इसलिए हम सबको जरूरी है कि हम सब एक ऐसे सरकार को चुने कि अगर हमने किसी
मुसलमान अगर गैर मुस्लिम को चुने तो मुसलमान को फायदा यह हो कि वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद मुसलमानों के हक में फैसला करे। अगर हिंदू किसी मुसलमान को इख्तिदार पर लाए, वो हिंदू ये सोचे वो मुसलमान होने के बावजूद हिंदू के हक में फैसला करता है। एक बात याद रखना, अगर कोई हक फैसला नहीं करता है तो मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते का जन्म मिल जाए, और जब कुत्ते का जन्म मिल जाए तो फिर हालात कैसे होंगे। सड़कों पर पड़ा हुआ कुत्ता जब एक भिखारी उसके ऊपर चलता है, उसके सामने से उसको डंडे मारता है। सड़कों से गुजरने वाला एक कुत्ता जब भौंकता है किसी को काटने के लिए, एक फकीर से फकीर आदमी उसके ऊपर लाठी चार्ज करता है। और जानते हैं उन्हीं की किताबों के मुताबिक एक कुत्ते का जन्म कैसे होता है, जो रिश्वत लेकर इख्तिदार पर लोगों को झूठ मूठ की बातें बताकर इख्तिदार पे आ गए, कुर्सी पर आ गए। अगर सरकारी फंड से 1 लाख रुपया आए, उन्होंने 80,000 अपने ही जेब में रख लिए, 20,000 गरीबों में बांटे मेरे प्यारे साथियों, और उस गरीबों में फिर चुन चुन के बांटे, जो अपने अपने रिश्तेदार हैं उसमें बांटे। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते का जन्म मिल जाए। एक वाकया मैं बताकर अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक सड़क पर कुत्ता पड़ा हुआ था, भौंक रहा था। एक भिखारी चला, भिखारी को बड़ा गुस्सा आया, एक कुत्ता भौंक रहा है, मैं भी भूखा हूं। उठाया लाठी और उसको दिया मार। उसको मेरे प्यारे साथियों डंडा मारा। वो कुत्ता शिकायत लेकर राम जी की अदालत में गए। ये वाकया मैंने बहुत जगह बताया और इस चीज को बताना मुनासिब समझता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, आप भी गौर कीजिए, इस वाकये से गौर कीजिए। आप ही की किताब के अनुसार मैं बता रहा हूँ। राम जी के दरबार में कुत्ते गए और कहा मुझे इंसाफ चाहिए। एक भिखारी ने मुझे डंडा मारा है। उस भिखारी को दरबार में लाया गया। जब वो भिखारी दरबार में आए, जब उनसे पूछा गया तुमने डंडा क्यों मारा, उसने कहा ये सड़क पर भौंक रहा था, मैंने डंडा मार दिया है। उस कुत्ते से कहा गया ऐ कुत्ता तुम बताओ के साथ कैसा सलूक किया जाए, कैसा बर्ताव किया जाए। कुत्ते ने कहा इस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दो, इस आदमी को झारखंड की सरकार बना दो, इस आदमी को बिहार और यूपी की सरकार बना दो। सब हंस पड़े। तुम्हें ही मारा, तुम इसको फिर सरकार बना रहे हो, तुम इसको प्रधानमंत्री बना रहे हो। जब इसी तरह करके प्रधानमंत्री बना दिए गए, सर में ताज पहना दिए गए, कुछ रकम भी दे दिए गए। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग चले गए। जब कुत्ता से पूछा गया कि तुमने इसको मर क्यों बनाया, तुमने इसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया, उस कुत्ते ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इस चीज से मैं इस बात को साबित करूंगा। कुत्ते ने कहा मैं भी एक जन्म में प्रधानमंत्री था, मैं भी एक जन्म में सरकार थी, मैं भी एक जन्म में मुख्यमंत्री हुआ करता था, मैं भी एक जन्म में मुखिया हुआ करता था। जब मेरे पास सरकारी फंड से लाख रुपये आ रहे थे तो मैंने 80,000 अपने जेब में रख लिए और 20,000 को अपने अपने लोगों में दिए। मैंने दुनिया में बेकसूर इंसान को मारा, किसी गरीब को उनका हक नहीं दिया। बेरोजगारों को बड़े बड़े वादा दिलाए, गरीबों को बड़े बड़े वादा दिलाए, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, बड़े बड़े वादा दिलाए, 10 लाख खाते में आएंगे, बड़े बड़े वादा दिलाए। लेकिन जब हम इख्तिदार पे आ गए थे किसी इंसान को कुछ नहीं दिए। और तब जब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया तो ईश्वर ने मुझे कुत्ते का जन्म दे दिया, क्योंकि हमारी किताब के अनुसार रिश्वत खाने वाला, किसी इंसान को नाहक मारने वाला, किसी इंसान के नाहक पैसा खाने वाला को कुत्ते का जन्म मिलता है। मैंने इसको देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जब इनके पास भी लाख रुपया आएंगे, ये अगर सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, गरीबों में नहीं देंगे, सारे रुपया अपने ही खा जाएंगे, गरीबों के ऊपर डंडा चलाएंगे, बेकसूर लोगों को जय श्री राम का नारा लगा कर मारेंगे, बेकसूर इंसान को मारेंगे, तब ईश्वर इसको भी कुत्ते का जन्म देगा। इसलिए मैंने इसको ऐसा जन्म देने के लिए कहा, इसलिए मैंने इसकी असली सजा चुनी। मेरे प्यारे साथियों, उस कुत्ते ने कहा मैंने इसके ये सजा इसलिए मुंतखब किया जिसको अब इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये अगर लोगों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा सुलूक करेंगे तो इंसान रहेगा, वरना इसको भी कुत्ते का जन्म मिलेगा और सड़क पर चलने वाला एक भिखारी भी उसको लाठी और डंडे से मारेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए। और अफसोस है आए हिंदुस्तान वासियों, अफसोस है हिंदुस्तान में फिर ये तबाही, कोरोना की चौथी लहर फिर तबाही मचाने जा रही है। दीगर मुल्कों में इसका केस इजाफा हो रहा है और ये बताए जा रहे हैं कि देश भर में कोरोना फिर से आ रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान वासियों, हम सबको जरूरत है, हम सब आपस में एक है, हिंदुस्तानी है। वो अलग बात है कि बिरादरी हमारी और आपकी अलग है, लेकिन हम सब आपस में हिंदुस्तान वासी है। हम सबको आपस में इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म करना चाहिए, मस्जिद मंदिर का झगड़ा खत्म करना चाहिए और आपस में एक होकर रहना चाहिए। क्यों? अगर जब हम आपस में एक होकर रहेंगे, वी आर divided we fall,
वी आर स्टैंडर्ड। मेरे प्यारे साथियों, जब हम खड़े रहेंगे, जब हम एक साथ रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, जब हम डिवाइड हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहे और हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने की, हिंदुस्तान को लेने की, हिंदुस्तान से लड़ाई करने की चीन बात करे तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान और हिंदू आपस में टूट पड़ेंगे और चीन से मुकाबला करेंगे। यही तो चाहते थे अंग्रेज, यही तो चाहते थे अंग्रेज कि मुसलमान और हिंदू आपस में बढ़ जाए और हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर ले। लेकिन उस वक्त हमारे पूर्वजों ने अच्छे दिमाग लगाए और हिंदुस्तान में सब हिंदू और मुसलमान एक होकर रहे। यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्लेट पे बैठकर खाना खाए। इसी चीज को तो आज हमें साबित करना है, भारत को सोने का चिड़िया साबित करना है और आपस में ये साबित करना है कि हम सब एक है। यानी हमसे अगर इंग्लैंड मुकाबला करे तो आज हम ये भी तैयार हैं, हम ये भी तैयार है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर इंग्लैंड पर मुकाबला करेंगे। ऐ हिंदुस्तान वासियों, ये गलत इल्जाम क्यों लगाते हो? हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों ठहराते हो? हमारा देश हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और हिंदुस्तान से प्यार करने में अगर हमारी जान चली जाए फिर भी हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कितने उलमा ने गर्दनें लटकाए, कितने उलमा फांसी के फंदे पर लटके, कितने उलमा को काले पानी की सजा मिली। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, कोई इंसान इस चीज को छुपा नहीं सकता है। इतिहास हमारे सामने मौजूद है। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को गद्दार ना कहा जाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशद्रोही ना कहा जाए। हमें मोहब्बत हिंदुस्तान से और ये हमारे नबी ने देश से मोहब्बत करना सिखलाया है। चलिए खैर, मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे आखिर में माज़रत का हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे पहले अगर वक्त देते तो मैं और कुछ बोलता। इंशाअल्लाह आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर हमारे अल्फाज में कुछ गुस्ताखी हो तो आप मुझे माफ़ कीजिए। मैं भी आपके एक भाई की तरह भाई हूँ। इंशाअल्लाह कभी भी आपके इलाके में आएंगे आपको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बनारस से आना हुआ, पूरे दिन का सफ़र, फिर रात भर जागे हैं, फिर मुझे दिन भर का सफ़र जाना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम सब दुआ करते अल्लाह ताला हम सब को एक प्लेटफॉर्म पर कायम अता फरमा दे। अल्लाह हम सब हिंदुस्तान वासियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दे। या अल्लाह हमारे अंदर जो हिंदू मुसलमान मस्जिद मामला का जो झगड़ा पैदा हुआ इसको ख़त्म कर दे। जो हमारे दरमियान नफरत व अदावत के बीच लोग बोल रहे हैं, या अल्लाह इसको उल्फत में कायम अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर आए हुए हैं जिन चैनल का नाम तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सदका जारिया के हिसाब से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इसमें उलमा की तकरीर आपको मिलेंगे। मुसलमान बड़े शौक़ से हीरो हीरोइन और जो भी बॉलीवुड के कुछ एक्टर होते हैं बड़े शौक़ से उनको सब्सक्राइब करके रखते हैं। कुछ मुसलमान तो ये भी करते हैं कि रात के 12 बजे अगर वो आ जाए, क्योंकि नेट ज़्यादा उसमें फर्स्ट रहता है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। इसलिए मैं आपसे माजरत कहूँ कि आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें उलमा की तकरीर आपको मिलेंगे, कुरान हदीस की बात आपको इसमें मिलेंगे और सदका जारिया के हिसाब से सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये मैं जरिया समझ रहा हूँ जो आज के नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, मुस्लिम में बेरोजगार है, अल्लाह हो सकता है इन्हीं चैनलों के जरिए वो बात आपको अच्छी चीज़ भी आपको मिल रहे हैं और उस मुसलमान भाई को भी, उस नौजवान भाई को भी कुछ अच्छे खासे आमदनी भी हो रहे हैं। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका मतलब ये उसको कुछ पैसे भी मिल जाए, आप भी उससे कुछ अच्छी बातें मिल जाए और आप उससे अच्छे रास्ते से तरक्कियों की राह से हम किनार हो सकें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।